TDF, the fund amount initially was 10 crores per project. Right. It has now been increased to 50 crores. 50 crores per project. So you can do a substantial R&D, not just innovation using existing technology. IDEX is more. Hi, I am Shailesh Kumar, founder of my company, Kuku Plugman Electronics Private Limited. I am a startup company and in the brand name of Plugman. Plugman is basically एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो किसी भी डिवाइस को स्मार्ट में कन्वर्ट करता है एक हार्डवेयर मॉड्यूल्स की तरह। जैसे फॉर वुमेन बाय वुमेन हमारा 100% जो फ्लीट है, मतलब जो पार्टनर्स है वो हमारी इन हाउस है, हमारे टेक टीम पूरा इन हाउस है। अभी हम सिर्फ गुड़गांव में मतलब है, हमने दिल्ली और प्रयागराज में भी स्टार्ट किया था। प्रयागराज में महाकुंभ के टाइम पे स्टार्ट किया था, उस टाइम हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स महाकुंभ में मिला था। हमने नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं हूँ स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप मेला, जहाँ इनोवेशन, आइडियाज़ और एंटरप्रेन्योरशिप का ज़बरदस्त संगम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं इस इनोवेशन के महाकुंभ में और जानते हैं क्या खास है यहाँ। यहाँ कदम रखते ही एनर्जी महसूस होती है, वो लाजवाब है। हर स्टॉल एक नई कहानी, एक नया सपना और एक यूनिक आइडिया लेकर आया है। यहाँ पर AI, हेल्थ टीज, एडिटीज, ग्रीन टीज, एग्रीटीज, हर फील्ड का स्टार्टअप आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन का माहौल बेहद जोश से भरा रहा। करीब 3000 से ज़्यादा लोगों ने स्टार्टअप महाकुंभ को विजिट किया। हर स्टॉल पर इनोवेशन की झलक और स्टार्टअप की एनर्जी देखने के लायक थी। यहाँ हमने मुलाकात की कई यंग एंटरप्रेन्योर से, जो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनोवेशन स्टार्टअप को यहाँ इन्वेस्टर और मेंटर से मिलने का सुनहरा मौका भी मिल रहा था। हर कोने में कोई ना कोई नई सोच, नया जज्बा देखने को मिला, चाहे वो AIT स्टार्टअप हो या लोकल सॉल्यूशन देने वाले यंग टैलेंट। स्टार्टअप महाकुंभ बना है भारत के असली ताकत का प्रतीक। TDF, the fund amount initially was 10 crores per project. Right. It has now been increased to 50 crores. 50 crores per project. So you can do a substantial R&D, not just innovation using existing technology. IDEX is more maybe TRL 5 to 6 to already at TRL 5, 6, those technologies you can quickly translate into a system, whereas TDF you can start with TRL. So there's a big R&D component and it requires some gestation period, and so these could be 3, 4, 5 year kind of projects. Typically we start with 3, but depending on the proposal. Whereas IDEX could be as short as 12 months. 1 year, 6 months, 1 year, 1.5 years. What is D2D, this initiative, sir? I've heard of this. D2D, I am not familiar. Okay. So, now going back to, funding is one aspect. Are there other ways in which you support startups in terms of test beds and other infrastructure they can leverage within the defense establishment and ecosystem? Yeah, that's a very good question. So all the facilities which currently exist with the DRDO labs, they are put up on a website which is run by DGQA, and it's a very transparent process where you can book a slot
and for a payment which is... What's the website, sir, for the... It's a DGQA website. DGQA. For the problems that we have defined. So and they can propose solutions based on those problems we have defined. So here there are many funds that you hear about. You hear about TDF, you hear about IDEX and the D2D. Maybe for folks here, if you can, at what stage would one look at which fund? And what is the role of each of these from a prototype to a production level system? Correct. So the IDEX is more for quick innovation using existing technologies. IDEX. Yeah. IDEX. And what's the quantum typically? So IDEX, initially they were funding 1 crore per project. Right. I think they have increased it to 10 crores. 10 crores per project, yeah. And these are innovative. These are existing technologies you innovate to give a new... Right. It as per the current government policy, but yeah, that's something that we can this where we can make these facilities available at no cost. But sometimes if there is no cost, people tend to... No, I mean it could be probably discounted for startups, but you're right. Correct. I mean there has to be some fee for it. Correct. Now, between a stage where we were at 100% import dependent to the stage where we will get to full self-reliance. Hi, I am Shailesh Kumar, founder of my company. We started Cuckoo Plugman Electronics Private Limited. I am a startup company and in the brand name of Plugman. Plugman is basically a cloud-based platform है जो किसी भी डिवाइस को स्मार्ट में कन्वर्ट करता है एक हार्डवेयर मॉड्यूल्स की। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, प्लगमैन के नाम से ये मेरा प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत हमने 2015 में की थी। ठीक है, मैं झारखंड से हूँ, धनबाद IIT ISM से और मेरा ये प्रोडक्ट जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये कितना दिन चल रहा है एग्जीबिशन? ये 3 दिन है। 3 दिन, आज 2 दिन हो गया। आज 2 दिन हो गया। तो कोई क्लाइंट आया आपसे पूछने में कितने इंक्वायरी आ रहे हैं? मेरे पीसीओ में लगभग अब तक कम से कम 800 से 1000 आ चुके हैं। थैंक यू। सर्विस है फॉर वुमेन बाय वुमेन। हमारा 100% जो फ्लीट है, मतलब जो पार्टनर्स है वो हमारी इन हाउस है, हमारी टेक टीम पूरा इन हाउस है। अभी हम सिर्फ गुड़गांव में मतलब है, हमने दिल्ली और प्रयागराज में भी स्टार्ट किया था। प्रयागराज में महाकुंभ के टाइम पे स्टार्ट किया था, उस टाइम हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स महाकुंभ में मिला था, हमने वहां पे भी किया। फिर दिल्ली में जो हमारा जो हो पाए जो टेस्टिंग था वो हमने इतनी ज्यादा हो गई थी कि लाइक हमसे यूजर्स वगैरह मतलब काफी वो हो गया था कि यूजर्स मतलब काफी हमको रिपोर्ट मिलने लगे कि यूजर्स बोलते थे कि फेरी तो मिलती ही नहीं है, फेरी तो मिलती नहीं है। तो एक तरह से वो नेगेटिव मार्केटिंग होने लगी। तो बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आपने क्या सीख लिया? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया लोगों को, तो उससे आपने कुछ अपने जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ बदलाव किया? एक्चुअली ये इसलिए अच्छा है कि वुमेन्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि लाइक मतलब जो वुमेन्स है रैपिडो या ओला पे सेफ नहीं होती। मतलब कोई लड़का ड्राइवर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कि चला भी ढंग से रहा है कि नहीं। हमारा जो है ओनली वुमेन्स है और एक लड़कियों के लिए सेफ पॉइंट ये है कि वुमेन्स के साथ जाना है तो जा सकती हैं। और रैपिडो ओला से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि रैपिडो और ओला में क्या होता है, फ्रीलांस कोई भी लड़का है 10 मिनट में आया काम करके चला गया। रैपिडो के पास वो तक नहीं है कि वो कहाँ पे लड़का है कि ट्रैक। हमारा पूरा इन हाउस ट्रैकिंग है, हमारी जो पार्टनर्स है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, हमारी तरफ से ड्रेस दिया जाता है उनको और प्लस एक फिक्स पे है सैलरी उनका। और जो यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड होते हैं वो पूरा AI फेशियल रिकॉग्निशन से होते हैं यूजिंग AI। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई मेल भी रजिस्टर नहीं कर सकता। और जब भी कोई राइड स्टार्ट होती है तो उसका ट्रैकिंग से लेके पूरी टीम हमारी उसको मॉनिटर करती है कि वुमेन पूरा सेफ पहुंची कि नहीं। ये सब थैंक यू। तो अगर आप भी इनोवेशन और नए इंडिया के फ्यूचर को करीब से देखना चाहते हैं तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 मिस मत कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पावर पॉइंट खबर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।